ججز نے استعفیٰ دے دیے، کیسے دیکھتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے کیا اس کے بعد اور بھی نقصانات ہونے جا رہے ہیں جس طریقے سے ججز نے استعفیٰ دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، ہر کام جب بھی ہوتا ہے، جب آپ بڑے سٹیپس لیتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ ساری دنیا کو وہ کبھی پسند نہیں آتے ہیں۔ یہ جو پارلیمنٹ ہے نا، اس کا کام جلیبیاں اور پکوڑے بیچنا نہیں ہے، اس کا کام ہے قانون سازی کرنا، اور یہ اس کا واحد کور بنیادی ذمہ داری اس کی یہی ہے۔ اگر آپ میرے پارلیمنٹ کو، جو عوام کا سب سے سپریم ادارہ، اس ملک کا سب سے سپریم ادارہ ہے اور عوام کی ترجمانی کرتا ہے، اگر آپ اس کی آزادی نہیں مانتے، آپ اس کے رائٹ کو نہیں مانتے، رائٹ آف لیجسلیشن کو نہیں مانتے ہیں، تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کریں گے ویئر ڈو یو اسٹینڈ۔ میں تو اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ پارلیمنٹ کا پروگیٹو ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کرے۔ ہم نے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس بھی دیکھی، جس کو سو کالڈ انڈیپینڈنس لوگ کہتے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا کہ پرویز مشرف کے دور میں اس کو وردی پہنے ہوئے یہ اختیار دینا کہ آپ آئین کو مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، جہاں مرضی ہے امینڈ کریں، اس کو تلپٹ کر دیں، اس کا چکنا چور کر دیں، جس سے کرنا ہے آپ مرضی سے کریں۔ یہ اختیار کس نے دیا تھا؟ کیا اسی کو آپ آزاد عدلیہ سمجھتے ہیں؟ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک چیف جسٹس جو کال کرتا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کو اگر ڈسکوالیفائی نہیں کرو گے تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، کیا وہ آزاد عدلیہ تھی؟ وہ پاناما کا بینچ جس نے ایک ملک کے منتخب وزیر اعظم کو یوں چند منٹوں میں فارغ کر کے گھر بھیج دیا، اس سے استعفیٰ لے لیا، تو بڑے استعفیٰ نہیں جی، چھوڑ دیے یہ بات، اس سے استعفیٰ لے لیں، وہ بڑا سانحہ تھا، یا آج 2 ججوں کا استعفیٰ دینا بڑا سانحہ؟ سر کیا یہ میرے خیال میں وزیر اعظم کو اس سے استعفیٰ لینا، یہ پوری پارلیمنٹ سے استعفیٰ لینا تھا، یہ پورے 25 کروڑ عوام کا استعفیٰ تھا۔ تو میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، ان کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا، دے دیا تو خوش آئند ہے، ٹھیک ہے، اور جج آ جائیں گے، کام کر لیں گے۔ نواز شریف کی جگہ شاہد خاقان عباسی نے آگے اگر اسٹیئرنگ ویل سنبھال لیا تھا تو ان کی جگہ بھی کوئی آ جائے گا۔ اچھا سر، آپ نے کچھ دن قبل جو ایک ویڈیو شیئر کی تھی، سہیل آفریدی صاحب کی ویڈیو آپ نے شیئر کی تھی، تو کیا اس کے بعد کوئی نااہلی کا عمل شروع ہو سکتا ہے؟ آپ نے جو شیئر کی تھی اس کا مقصد تھا کچھ اس طرح کا؟ یار میں تو چیز سامنے لے آیا ہوں، اب ادارے موجود ہیں، ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، دے ہیو ٹو ٹیک دا نیسیسری ایکشن کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، لے لیں، اگر کوئی نہیں لے گا تو پھر ہم درخواست لے آئیں گے۔ کافی لوگوں نے اس کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں نے کمنٹ کیا کہ یہ تو زمان پاک کی ویڈیو ہے یا کسی اور جگہ کی ویڈیو ہے۔ پی ٹی آئی نے کب مانی ہے کوئی بات؟ اچھا سر یہ بتائیے گا، وہ تو یہاں پر جو تھے تو کہتے تھے کہ پی ایم ہاؤس میں انہوں نے کوئی لائبریری بھی بنانی تھی، اور میرے خیال میں اس وزیر اعظم نے سائیکل پر بیٹھ کر اپنے دفتر بھی آنا تھا۔ ان کی کیا ہے، وہ تو یہ پیچھے بیک گراؤنڈ چینج کرنا، وطن چینج کرنا، وہ ان چیزوں کے ماسٹر ہیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹ اس کا تھا، سہیل آفریدی کا تھا، انہی کی ویڈیو تھی، وہی کہہ رہے تھے کہ میں کور کمانڈر ہاؤس پہنچ چکا ہوں، اور پی ٹی آئی والے بھی فیصلہ کرے اور قوم بھی گزشتہ دن جو امن جرگے میں سر پی ٹی ایم کے 2 لوگوں کو اٹھایا گیا اور ابھی تک ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں، تو اس جرگے کو سب نے سراہا بھی کہ پیسفل جرگہ تھا، لیکن اس جرگے کے بعد 2 لوگوں کو اٹھانا کس نے اٹھایا؟ مجھے نہیں پتا، آئی ایم ناٹ اویئر اباؤٹ اٹ، یہ آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی، لیکن کسی کو اٹھانے اور اٹھا کر کہیں غائب کرنے کے میں کبھی اس کی حمایت نہیں کرتا۔ پی ٹی آئی میں بڑی خیبر پختونخوا میں بڑی تبدیلی آئی ہے، وزیر اعلیٰ تبدیلی ہوئے ہیں، تو کوئی اصلی تبدیلی بھی آئی ہے یا صرف وزیر اعلیٰ کی تبدیلی آئی ہے؟ کیا تبدیلی آئے گی وہاں پہ؟ تو وہ کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا کہ اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے، وہاں تو کوئی کانا بھی نہیں رہا، سارے ہی اندھے ہیں، تو اس میں تو کوئی راجا بچا ہی نہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم میں آرمی چیف کو بھی استثناء دیا گیا، صدر کو بھی دیا گیا، شہباز شریف کو نہیں دیا، وزیر اعظم کو، کیا وجہ ہے؟ جس نے استثناء لینا ہے اس کو دے دیں گے، اگر آپ کو چاہیے آپ بھی آ جائیے، آپ کو بھی دے دیں گے اگر آپ ڈیزرو کرتے ہیں۔ سر اسپیکر کی اور محمود خان پریزیڈنٹ ہیں، ان کو پہلے سے استثناء حاصل ہے، اور فیلڈ مارشل کو میرے خیال میں استثناء دینا جو ہے وہ اچھا ہے، ضروری تھی۔ جو انہوں نے کارنامے کیے ہیں، جو انہوں نے اس ملک کے لیے عزت کمائی ہے، میں کہتا ہوں جو ان کو ہم نے ابھی دیا ہے یہ کم ہے، زیادہ دینا چاہیے۔ سر اسپیکر کی اور محمود خان اچکزئی کی گزشتہ روز ملاقات ہوئی ہے، تو کیا حکومت جو ہے وہ مذاکرات کا دروازہ کھولنے جا رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ اسپیکر صاحب نے جو پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی تھی وہ آج تک انٹیکٹ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی آئے، وہ
बात करें जमहूरी तरीके से राउंड द टेबल, हम उनके साथ बात करेंगे, लेकिन हर बात का जवाब ये नहीं होता कि कैदी नंबर 800 चोर को रिहा करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जजेस ने इस्तीफ़ा दे दिए, कैसे देखते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के क्या इसके बाद और भी नुकसानात होने जा रहे हैं जिस तरीके से जजेस ने इस्तीफ़ा दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, हर काम जब भी होता है, जब आप बड़े स्टेप्स लेते हैं ना, तो कुछ ना कुछ सारी दुनिया को वो कभी पसंद नहीं आते हैं। ये जो पार्लियामेंट है ना, इसका काम जलेबियाँ और पकोड़े बेचना नहीं है, इसका काम है कानून साजी करना, और ये इसका वाहिद कोर बुनियादी जिम्मेदारी इसकी यही है। अगर आप मेरे पार्लियामेंट को, जो आवाम का सबसे सुप्रीम इदारा, इस मुल्क का सबसे सुप्रीम इदारा है और आवाम की तर्जुमानी करता है, अगर आप उसकी आज़ादी नहीं मानते, आप उसके राइट को नहीं मानते, राइट ऑफ लेजिस्लेशन को नहीं मानते हैं, तो फिर आप खुद ही फैसला करेंगे वेयर डू यू स्टैंड। मैं तो अपनी पार्लियामेंट के साथ खड़ा हूँ, ये पार्लियामेंट का प्रोगेटिव है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करे। हमने जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी देखी, जिसको सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस लोग कहते हैं। हमने तो देखा कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उसको वर्दी पहने हुए ये इख्तियार देना कि आप आइन को मशरिक़ से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, जहाँ मर्जी है अमेंड करें, उसको तलपट कर दें, उसका चकनाचूर कर दें, जिससे करना है आप मर्जी से करें। ये इख्तियार किसने दिया था? क्या इसी को आप आज़ाद अदलिया समझते हैं? और फिर हमने देखा कि एक चीफ जस्टिस जो कॉल करता है कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को अगर डिस्क्वालीफाई नहीं करोगे तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, क्या वो आज़ाद अदलिया थी? वो पानामा का बेंच जिसने एक मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को यूं चंद मिनटों में फारिग करके घर भेज दिया, उससे इस्तीफा ले लिया, तो बड़े उससे इस्तीफा नहीं जी, छोड़ दिए ये बात, उससे इस्तीफा ले लें, वो बड़ा सानेहा था, या आज 2 जजों का इस्तीफा देना बड़ा सानेहा? सर क्या ये मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म को उससे इस्तीफा लेना, ये पूरी पार्लियामेंट से इस्तीफा लेना था, ये पूरे 25 करोड़ आवाम का इस्तीफा था। तो मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट अ बिग डील, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, दे दिया तो खुशाइन है, ठीक है, और जज आ जाएंगे, काम कर लेंगे। नवाज़ शरीफ की जगह शाहिद खाकान अब्बासी ने आके अगर स्टीयरिंग व्हील संभाल लिया था तो इनकी जगह भी कोई आ जाएगा। अच्छा सर, आपने कुछ दिन कबल जो एक वीडियो शेयर की थी, सोहेल आफरीदी साहब की वीडियो आपने शेयर की थी, तो क्या उसके बाद कोई नाअहली का अमल शुरू हो सकता है? आपने जो शेयर की थी उसका मकसद था कुछ इस तरह का? यार, मैं तो चीज़ सामने ले आया हूँ, अब इदारे मौजूद हैं, डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, दे हैव टू टेक द नेसेसरी एक्शन कि उन्होंने क्या करना है, ले लें। अगर कोई नहीं लेगा तो फिर हम दरख्वास्त ले आएंगे। काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर PTI के लोगों ने कमेंट किया कि ये तो ज़मान पार्क की वीडियो है या किसी और जगह की वीडियो है। PTI ने कब मानी है कोई बात? अच्छा सर, ये बताइएगा, वो तो यहाँ पर जो थे तो कहते थे कि PM हाउस में उन्होंने कोई लाइब्रेरी भी बनानी थी, और मेरे ख्याल में उस वज़ीर आज़म ने साइकिल पर बैठकर अपने दफ्तर भी आना था। उनकी क्या है, वो तो ये पीछे बैकग्राउंड चेंज करना, वतन चेंज करना, वो इन चीज़ों के मास्टर हैं। सीधी बात यह है कि वो अकाउंट उसका था, सोहेल आफरीदी का था, उन्हीं की वीडियो थी, वही कह रहे थे कि मैं कोर कमांडर हाउस पहुंच चुका हूं। तो PTI वाले भी फैसला करें और कौन भी गुज़िश्ता दिन जो अमन जिरगे में सर PTM के 2 लोगों को उठाया गया और अभी तक उनका पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। तो इस जिरगे को सबने सराहा भी कि पीसफुल जिरगा था, लेकिन उस जिरगे के बाद 2 लोगों को उठाना, किसने उठाया? मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन किसी को उठाने और उठाकर कहीं गायब करने के मैं कभी इसकी हिमायत नहीं करता। PTI में बड़ी खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली आई है, वज़ीर आला तब्दीली हुए हैं, तो कोई असली तब्दीली भी आई है या सिर्फ वज़ीर आला की तब्दीली आई है? क्या तब्दीली आई वहाँ पे? तो वो कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि अंधों में काना राजा होता है, वहाँ तो कोई काना भी नहीं रहा, सारे ही अंधे हैं, तो उसमें तो कोई राजा बचा ही नहीं। 27वीं आईनी तरमीम में आर्मी चीफ को भी इस्तिस्ना दिया गया, सदर को भी दिया गया, शहबाज शरीफ को नहीं दिया वज़ीर आज़म को, क्या वजह है? जिसने इस्तिस्ना लेना है उसको दे देंगे, अगर आपको चाहिए आप भी आ जाइए, आपको भी दे देंगे सर, अगर आप डिजर्व करते हैं। सर, स्पीकर की और महमूद खान अचक प्रेसिडेंट हैं, उनको पहले से इस्तिस्ना हासिल है, और फील्ड मार्शल को मेरे ख्याल में इस्तिस्ना देना जो है वो अच्छा है, ज़रूरी थी। जो उन्होंने कारनामे किए हैं, जो उन्होंने इस मुल्क के लिए इज़्ज़त कमाई है, मैं कहता हूँ जो उनको हमने अभी दिया है ये कम है, ज़्यादा देना चाहिए। सर, स्पीकर की और महमूद खान अचकज़ई की गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई है, तो क्या हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलने जा रही है PTI के लिए?
स्पीकर साहब ने जो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई थी वो आज तक इंटैक्ट है। हम तो कहते हैं कि पीटीआई आए, वो बात करे जमहूरी तरीके से राउंड द टेबल, हम उनके साथ बात करेंगे, लेकिन हर बात का जवाब ये नहीं होता कि कैदी नंबर 804 को रिहा करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। 27वीं तरमीम के बाद क्या कहेंगे? वक्त कानून साजियों का मौसम है और मेरा ख्याल है कि जो थोड़े बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी मुल्क में सियासी मुफाहमत की या मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी की, वो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती जा रही है। सर, सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफों की इतलात आ रही हैं, क्या कहेंगे? ये सुना है अतर मिनुल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, मंसूर अली शाह एक आइकॉन रहे हैं, बहुत ही आला पाए के इंसान। वो हक था उसका कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनते, हमारे निज़ाम ने उसको इससे महरूम किया। बाकी जो है, कल तक अगर वो इंतज़ार कर लेते क्योंकि फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया है, अगर उनकी सुनवाई न होती तो लाज़िमन इन जैसे कद काट के जज साहिबान का जूनियर जज के अंडर काम करना जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं था और यही होना था। मेरा ख्याल है कि इन दो ने अगर इस्तीफे दिए हैं तो शायद चंद एक और भी इस्तीफे देंगे। तो वक्त का तयन दुरुस्त था, इस वक्त इस्तीफे देना दुरुस्त था? ये बस ये मुमकिन ही नहीं है ना। ये और भी हाई कोर्ट से भी इस्तीफे आएंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी शायद 2-3 और इस्तीफे आ जाएं, क्योंकि एक जुडिशल क्राइसिस तो पैदा हो चुकी है। और हल क्या है सर? सोल्यूशन नहीं, हल की तरफ कोई जा ही नहीं रहा है। हल की तरफ न पीटीआई जा रही है और न हुकूमत जा रही है। और मुझे तो ये नज़र आ रहा है, आज भी बेचारे हमारे एमएनएस थे पार्लिमानी पार्टी में मुफाहमत की बातें कर रहे थे। अब यहाँ दूसरी तरफ वो कहते हैं जी कायमा कमेटियाँ छोड़ो, फलां से रिज़ाइन करो, इलेक्शन कंटेस्ट न करो। केपी में जो है हालात जो है वो बिल्कुल टकराव की तरफ जा रहे हैं। एहतजाज की बाज़कश्त भी है और गवर्नर राज की भी। मेरा ख्याल नहीं है कि अगर पीटीआई रिसीविंग एंड पे है, नुकसान तो पीटीआई का हो रहा है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा नुकसान जो है वो हुकूमत वक्त का हो रहा है, रियासत पाकिस्तान का हो रहा है। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है, इन्वेस्टमेंट तो आने से रही, तो लिहाजा क्यों ये नहीं सोचते हैं? एक आसान साल है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब चले जाएं इमरान खान के पास, उनके साथ बैठे उसी दिन ये हल हो जाएंगे। लेकिन अब मुझे यकीन है कि ये हल हो जाएंगे अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये इनिशिएटिव ले लें और तारीख में अपने आप को अमर कर देंगे। सर, ये जो इस्तीफे आए हैं ये आईनी या कानूनी बुरान का कोई सबब बन सकते हैं? ये इस्तीफे जो है, देखिए, इनसे गुलू खलासी तो चाहते थे, इसीलिए तो 26वीं आईनी तरमीम हुई और इसीलिए 27वीं आईनी तरमीम हुई, तो लिहाजा ये टारगेट थे। अच्छा सर, आप कह रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के पास जाए मुलाकात के लिए, तो आपकी मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म साहब से, क्या आप उनको दोबारा कह सकते हैं, वज़ीर आज़म को मशवरा दे सकते हैं? देखिए, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट की मशावरत के बगैर तो नहीं जा सकते हैं, तो लिहाजा इन सबको कायल करना होगा। देखिए, मैं एक बात बता दूँ, जो लोग खान साहब के पास जाते हैं वो उसको भड़काते हैं कि जनाब बताते हैं जी पूरी कौम पीछे खड़ी है और जान देने के लिए तैयार हैं। जो लोग कोटलखपत में बैठे हैं वो मुफाहमत वाले हैं। 2.5 साल उनके जेल में हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब, गवर्नर साहब, डॉक्टर साहबा, एजाज चौधरी साहब। जो मौजूदा क़यादत हैं, जो बाहर हैं और जिनकी खान तक रसाई हो सकती है, वो खान से ये बात करने की जरूरत ही नहीं कर सकते कि जी आपकी ये पॉलिसियाँ ठीक नहीं है। लेकिन ये वो लोग हैं जो खान को ये बता सकते हैं। हुकूमत को चाहिए उनको निकाल लाएं ताकि खान के पास जाएं और खान को कैल करें। वो भी तो मतलब ये है कि ये जो नए वज़ीर आला के साथ सींगे लगाई हुई है, लिहाजा केपी में अगर गवर्नर राज आ जाता है तो पीटीआई के पास एहतजाज का तो कोई रास्ता ही नहीं है।